To all those who sleep tonight, all I can say is your call rates are about to double. That's right, petrol, onion, and in the new year, get ready to pay more for your phone calls. That's what the 2G scam is all about. If you like Raja, you will pay more. If you don't like Raja, you will still pay more. How did they con you into paying 3 rupees for something you used to only pay 50 paise? Hello, don't look at me. It wasn't me talking to Neera Radia. Jai Hind. Can only advise you to stay calm when your phone bills rise faster than the sea level and hope that you drown in our inconsequential humor instead of the torrential downpour of call charges in 2011. Jai Hind. एक जमाना था जब हर रोज हिमेश का एक नया गाना रिलीज होता था। आजकल हर रोज नीरा राडिया का एक टेप रिलीज होता है। जी हाँ, पिछले दिनों बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस और मीडिया वालों से नीरा राडिया की बातचीत के 800 और नए टेप्स लीक हो गए। 800 टेप्स, इतने तो पेरिस हिल्टन के भी नहीं हुए। बट इट्स सो सैड कि इतने सारे टेप्स रिलीज हुए और एक भी सेक्स टेप नहीं था। मतलब इन लोगों ने स्वामी नित्यानंद से कुछ सीखा ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 800 के 800 सेक्स टेप होने चाहिए थे, लेकिन फिर भी हर 25-30 टेप के बाद एक आध भी होता ना तो मूड बना रहता है। वो लोग फिर बाकी के टेप्स भी सुनते ढंग से। पर कोई बात नहीं, हमारे पास फिर भी कुछ किंकी और एक्साइटिंग है। नीरा राडिया का फेसबुक पेज। जी हाँ, फेसबुक की घटिया प्राइवेसी सेटिंग्स का फायदा उठाकर हमने निकाल लिया है नीरा राडिया का ये मसालेदार पेज। देखिए, वो राइट आफ्टर दिस ब्रेक। और साथ में है एलएनएन, हमारा नया सेगमेंट है जय हिंद विकी लीक्स, चंडीगढ़ फैशन वीक और रानी मुखर्जी की गाली। आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। सबसे पहले कुछ नहीं था, ट्विटर नहीं, ट्विटर पे ट्विटर नहीं था। सबसे पहले कुछ नहीं था, ट्विटर नहीं, ट्विटर पे ट्विटर नहीं था। भी नहीं था,
धीरज रखो भाई, शांति रखो। हाँ, सो एज आई सेड, हमारे हाथ लगा है नीरा राडिया का फेसबुक पेज। टेक अ लुक। हाँ, Neera Radia is now friends with Ratan Tata and 45 others. Neera bought a new black gown. Mukesh Ambani and Ratan Tata like this. Neera wrote on Barkha's wall, "Hello babes, nice talking to you last night." 36 people like this. Barkha, "Yes darling, same here, काम हो जाएगा." A Raja, "You ladies rock. Thanks for getting me the telecom. By the way, party tonight." Karunanidhi, "Ayyo, Raskala, bypassing that party boss, da." Hey Raja, "Sorry sir, you take care of your third generation kids, 3G. Let me take over 2G." Anil Kapoor, "AG, OG, LOG, SUNOG, 1G का 2G, 2G का 3G. Hello, Danny Ball. LOL. Anish Bajmi, "Hey, very funny Anil. Please get me a Hollywood film. Love you." Neera was tagged in Ratan Tata's photo. Ratan Tata, "Hey, this is our Diwali edition car." Neera, LOL. Nice sense of humor, Ratan. Ratan, "Thanks. Hey, coming for dinner?" Neera, "Where? Where?" Ratan, "Where else? My hotel Taj. I get 50% discount, Gajeri." Neera, "Conjuice." Veer Sangvi played a quiz about Neera Radia and scored 100%. When is Neera angry? The answer, when I don't get my editorials approved from her. Neera Radia and Mukesh Ambani like this. Neera, good boy. Veer, last month's payment अब तक नहीं मिला. Neera, "Wait now. Okay, listen, you want to go to France?" Veer, "I want a payment, bitch." Neera, "Relax, हो रहा है." Veer, "घंटा पेमेंट दे, नहीं तो ले लूंगा टाटा और अंबानी के अगले हफ्ते वाले आर्टिकल में." Neera, "Okay, done. Check your bank account." Veer, "हाँ, got it. Okay, now how do I delete ऊपर के comments? Any idea?" नंदन लीलाकणी, "Internet illiterates." आमिर खान, "Hey, वीर, मैं बताऊं क्या? मैं बताऊं? CBI man, all this is being recorded." Prabhu Chawla slapped Neera Radia using Thappad application. Anil Ambani likes this. Neera, "But why?" Prabhu, "Hey, wait, CBI man, all of this is being recorded." ये था वो पेज। अगर आप चाहें तो ये पेज एज एन इमेज डाउनलोड भी कर सकते हैं। जस्ट रजिस्टर ऑन jaihind.tv एंड गो टू डाउनलोड्स। इन मोर न्यूज, हाल ही में चंडीगढ़ में भी फैशन वीक हुआ। ये बात और है कि वहां फैशन के नाम पर पंजाबी मुंडे अपनी नई मोटर बाइक लेकर रैंप पर आए और देखने वालों को मां बहन की गालियां रैप में सुनाई। चंडीगढ़ फैशन वीक का शो स्टॉपर था, चंडीगढ़ फैशन वीक के शो स्टॉपर थे, can you guess? जिमी शेरगिल। That's perfect. जिमी शेरगिल का जन्म ही इसीलिए हुआ था कि एक दिन वो चंडीगढ़ फैशन वीक के शो स्टॉपर बन सके। नो वन किल्ड जेसिका में नो वन किल्ड जेसिका नाम की फिल्म में रानी मुखर्जी बरखा दत्त से इंस्पायर्ड एक जर्नलिस्ट का कैरेक्टर प्ले कर रही है। मतलब कि पूरी फिल्म में रानी मुखर्जी किसी चालू औरत से फोन पर बात करती रहेंगी और लास्ट में प्रूव करने की कोशिश करेंगी कि मैंने किसी से बात नहीं की, मैं तो बस फोन को सूंघ रही थी। मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज फिल्म में रानी बरखा दत्त बनी रानी से जब एक आदमी कहता है आपने कारगिल कवर किया, बहुत मजा आया, तो रानी जवाब में कहती है वहां होते तो गांड फट के हाथ में आ जाता। सच्ची बोलो, चेक कीजिए। वहां होते ना तो गांड फट के हाथ में आ जाता। और हम रानी को कहना चाहेंगे, रानी हमारी भी आ गई थी जब तुम्हारी लास्ट फिल्म दिल बोले हड़िप्पा देखी। वैसे इस लाइन से इंस्पायर होकर बरखा दत्त ने भी कुछ किया है, देखिए। I think again one of the problems for me in the way this debate has been constructed in the media is the clubbing together of so many different things. Of course I spoke to people in the Congress to find out what was happening in the Congress. वहाँ होते ना
तो गांड फट के हाथ में आ जाती। और अभी बाकी एलिमेंट हमारा नया सेगमेंट विक्की लीक्स और प्रीति जिंटा। याद है ना? अरे वो हीरोइन नहीं, ओके फोटो दिखाते हैं, ब्रेक के बाद दिखाएंगे। बजा भैया। विकीलीक्स के एक केबल में पता चला है कि राहुल गांधी ने यूएस ऑफिशियल्स को कहा कि इंडिया को लश्कर ए तौयबा से बड़ा खतरा हिंदू टेररिज्म से। विच इज बेसिकली सेइंग कि राहुल बाबा को सुसाइड बॉम्बर से डर नहीं लगता, पर हाफ चड्डी पहने हाथ में डंडा लिए हुए आदमी को देखकर गोरे गांधी की फट जाती है। हमें ऐसे प्राइम मिनिस्टर चाहिए जो दिखने में भले ही चूतिया ना हो लेकिन हरकतें उतनी चूतिया पाखी करे जितने प्राइम मिनिस्टर्स के स्टैंडर्ड। हाँ, राहुल बाबा ने यह भी कहा है कि इंडिया को नक्सल से भी कोई खास खतरा नहीं। यस, राहुल बाबा बिल्कुल सही। नक्सल से क्या खतरा हो सकता? वो तो कितने शांति प्रिय लोग हैं, बस कभी कभी रेल पटरियां उड़ा देते हैं, पुलिस वालों को मार डालते हैं, किसी किसी को किडनैप करके उसके हाथ पैर काट के भेज देते। बाकी तो वो लोग बड़े मासूम और सीधे साधे। वैसे राहुल बाबा जिस हिंदू टेरर की बात कर रहे हैं उसका एक प्रूफ हमारे पास है। लगता है बचपन में मां सोनिया अम्मा ऐसे ही गदा से राहुल को मारती होंगी, इसलिए दिमाग में हिंदू टेरर जैसे शब्दों का इतना खतरनाक चित्र है उनका। वैसे राहुल बाबा के कुछ ऐसे विकीलीक्स भी हैं जो अब तक जूलियन असानिये ने रिलीज नहीं किए, लेकिन हमारे हाई क्वालिटी इन हाउस हैकर विकी ये देखिए, ने उन्हें उसके खजाने में से निकाल लिया है। इनफैक्ट हमारे विकी के पास बहुत से अनरिलीज सीक्रेट्स हैं जो अब हम हर हफ्ते आपके सामने पेश करेंगे हमारे इस नए सेगमेंट में जिसका नाम है जय हिंद विकीलीक्स। I gotta pee. Why is everyone laughing at me? So if you find a little pee on the floor after I leave, I think it probably belongs to me. हाँ जी, so let's start with राहुल गांधी के विकीलीक्स। May 2004 राहुल गांधी टू प्रियंका गांधी, मन्नू अंकल पीएम बन गए, अगले 5 साल हमारी मस्ती। जनवरी 2009 राहुल गांधी टू सोनिया गांधी, इलेक्शन कैंपेनिंग। ये क्या होता है मम्मी? तो यू मीन वहां धूप पे खड़े होकर बोलना होगा और खाना कहाँ मिलेगा? गांव में। और रियली मैं किसी भी घर में घुस के खाना खा सकता हूँ? मई 2009 राहुल प्रियंका से, मन्नू अंकल फिर से पीएम बन गए, इस बार उनका मन नहीं था लेकिन हमने भांग की गोली खिलाकर मना लिया, अब फिर से 5 साल कुछ छुट्टी मत जा। दिसंबर 2009 राहुल मायावती से, ए मोटी रोज ज्यादा किसको बोला? देखना मैं ट्रेन में बैठ के आऊंगा और गांव में जाके रहूंगा, तेरे स्टेट पे देख लेना। मार्च 2010 राहुल गांधी अपने पीए से, रामू काका ये इन्फ्लेशन क्या होता है? नहीं आज मुझे प्रेस में बोलना है, प्लीज ये पेन मारकर मेरे डिंपल गहरे कर दो ना। हाँ, सब मेरी स्माइल पर ही मर मिटेंगे, कोई कुछ पूछेगा ही नहीं। अक्टूबर 2010 राहुल गांधी मम्मी सोनिया से, मम्मी ये नया विकीलीक्स आया है, दुनिया में सबके पास है, मुझे भी चाहिए, मुझे भी अपना विकीलीक्स चाहिए। नवंबर 2010 टू प्रियंका, दीदी पता है डीएमके वाले ये भाई बहन मिलके ना कितने करोड़ों का 2G स्कैम कर गए हैं और एक हम हैं, अब तक पापा के किए हुए घोटालों का ही खा रहे हैं। शेम ऑन अस। दिसंबर 2010 आफ्टर द विकीलीक्स सोनिया गांधी राहुल से, बेटा मिल गए तुम्हारे विकीलीक्स। राहुल खुद से, व्हाट द और अभी बाकी एलिमेंट और प्रीति जिंटा की शक्ल जिसे आप भूल चुके होंगे। आफ्टर दिस ब्रेक बजा।
प्रियंका को अब हिमाचल प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। काफी टफ कंपटीशन था इस काम के लिए। प्रीति की क्लोज कंटेंडर थी एक हिमाचली याक। वैसे खबर है कि हिमाचल टूरिज्म ने ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए पहले अभिषेक बच्चन से बात की थी, लेकिन फिर उन्हें डर लगा कि हिमाचल में इतने पहाड़ है, कहीं अभिषेक किसी पहाड़ के ऊपर से कूद गए तो। और फिर कुछ लोगों का यह मानना था कि अभिषेक का हिमाचल से क्या लेना था, लेकिन फिर उन्होंने सोचा अभिषेक का बंगाल से भी क्या लेना देना था, जबकि वो अपनी लास्ट फिल्म में बंगाली बने। उसके पापा का गुजरात से क्या लेना देना, जबकि वो गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर। और ऐश्वर्या राय का एक्टिंग से क्या लेना देना, जबकि वो आज की सबसे बड़ी एक्ट्रेस है। खैर फाइनली किसी ने कहा कि प्रीति जिंटा को ही ब्रांड एम्बेसडर ले ले। ब्रांड का ब्रांड, और आजकल चौड़ी भी एम्बेसडर जितनी होगी ये ठीक रहेगा। अब बारी है हमारे बरख दत्ता की। आपको देने के लिए इस हफ्ते की लेट नाइट न्यूज। और हाँ, आपको बता दें कि बरख दत्ता को नीरा राडिया ने कोई कॉल नहीं किया। और जैन की तरफ से मैं बाकी पीआर लॉबिस्ट को भी यही कहना चाहता हूं कि हमारा बरख बिकाऊ नहीं है। नमस्कार, मैं हूं बरख दत्ता, ये है एलएनएन और आप हैं आप। आज की सबसे बड़ी दिल दहला देने वाली खबर, अमिताभ बच्चन ने खाई 1000 रुपए के नोटों की सब्जी। जी हां, इस अचंभित कर देने वाली घटना ने पूरे देश को हिला के रख दिया है। पैसे रखने की जगह कम पड़ने पर अमिताभ बच्चन ने 1000 रुपए के नोटों की बनाई सब्जी और उन्हें कटोरी भर भर के खाया। इस बारे में और बात करने के लिए चलते हैं बिग बी के बिगेस्ट फैन, सपोर्टर और अनऑफिशियल स्पोक्समैन अभिषेक बच्चन के पास। अभिषेक, आपके पिता ने ऐसा क्यों किया? पापा को बहुत टेंशन हो रहा था। हाय, इतने सारे पैसे देखकर, हाय, डेली केबीसी से 2-3 करोड़ रुपए मिलते हैं, हाय, इतने सारे टीवी एड्स करते हैं, हाय, और फिल्म्स भी करते हैं, हाय, और डेली 7-8 करोड़ रुपए कमाकर घर ला रहे हैं। इतने पैसे देखकर उन्हें चक्कर आने लगे थे। इन पैसों को खत्म करने का फास्टेस्ट तरीका उनकी सब्जी बना के खाना ही तो था। लेकिन ये रुपए के नोटों की सब्जी बनाने का आइडिया कहां से आया? अरे पापा ने ही दिया। उन्होंने कहा इतने साल से जो भी फिल्म कर रहे हैं उसमें रुपए के नोटों का भरता ही तो बन रहा है, तो क्यों नहीं हम खुद भी बना के खाएं। व्हाट एन आइडिया सर जी। हाँ, तो अभिषेक, आपने भी ये सब्जी टेस्ट की? नहीं, मुझे नहीं मिली। मेरे लिए अलग से बनी थी 1 रुपए के सिक्कों की सब्जी। 1 रुपए के सिक्कों की? हाँ, वो क्या है ना कि डैड के नाम के मंदिर बने हैं देश भर में, वो 10-12 मंदिर तो हैं ही, तो वहां से जो छुट्टा पैसा आता है वो वही मेरा पॉकेट मनी होता है, तो मुझे उसकी ही भाजी खाना अलाउड था। तो अगर आपके डैड के पास इतना पैसा है तो वो अब इतना काम क्यों कर रहे हैं, इतने पैसे क्यों कमा रहे हैं? अरे जैसे कि मेरे पास बिल्कुल नहीं है और मैं और कमा भी नहीं रहा, वैसे ही। और अब क्या करें, आदत बन जाती है ना, कोई क्या करेगा। इस उम्र में उनको समझाने जाओ तो गुस्से में दिन भर ऐसे ट्वीट 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 करते रहते हैं। चक 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 चक। आजकल बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है उन्हें। ओए अभिषेक, किससे बात कर रहे हो भाई? चलो इधर आके टॉय को घुमाने ले जाओ, फालतू टाइम बर्बाद करता है दिन भर। ये था एक सफल परिवार का छोटा सा नमूना, 1000 रुपए के नोटों की सब्जी। और अभी आगे है, देखिए, मिनिस्टर के कुत्ते ने मांगी अपनी गली के कुत्तों से रिश्वत, और इंडिया के नए मून मिशन का नाम है यहां पेशाब करना मना है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन आप तो जानते होंगे अब हमारा मूड नहीं है। तो ये था आज का खेल। अब जाओ और टीवी न्यूज देखो, ये तुम्हारा आज का श्राप है। जय हिंद। अजनबी कहीं दूर चले, थोड़ी सी सही अनजानी राह चले, भूली है कहीं बिछड़े खातिरे, बीती आहसी सोए अरमां मेरे। चल अजनबी